students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Orpheus and Eurydice. ये एक sad love story है, इसके बारे में हम जान लेते हैं. Summary. Here is the story of Orpheus, the son of Apollo, the sun god, who became one of the greatest musicians of Greece. According to a Greek legend, Orpheus was such a person who could mesmerize even the gods with his lyre playing. रीड द स्टोरी एंड एन्जॉय इट. तो ऑर्फीज की स्टोरी जान लेते हैं, जो एक म्यूजिशियन था. अपने म्यूज़िक से वो लोगों को क्या कर लेता था, मोहित कर लेता था. तो क्या है स्टोरी, ये हम जान लेते हैं. Orpheus was the son of Apollo, the sun god. He was taught to play the lyre by Apollo himself and soon he became one of the greatest musicians of Greece. तो Orpheus जो है ये किसका बेटा था, अपोलो का बेटा था, जिनको सन गॉड कहा जाता था. और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. लायर जिसे हम कहते हैं, जो कि इस तरीके का होता है, उसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं, उसको ये बजाता था. He enchanted with his music not only humans but wild beasts also. It is said that even trees and rocks were captivated by his music and tried to move and follow the sound of his strains. तो जब भी वो अपना जो गिटार था या जो भी उसका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसको वो बजाता था, तो ह्यूमंस तो मेस्मराइज होते थे. जो वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड एनिमल्स हैं, दूसरे जीव जंतु हैं, वो भी उसका गाना सुनने के लिए, उसका म्यूज़िक सुनने के लिए उसके पास आ जाते थे. और जहाँ जहाँ से वो बजाता था, सारे जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो उसको फॉलो करते थे. Orpheus had a beautiful wife named Eurydice. They loved each other very deeply. For a year or two, they lived in great happiness. Then one day, as they were wandering through a flowery meadow, Eurydice stepped on a poisonous snake. The snake bit her and she died at once. अब उसकी क्या थी, एक ब्यूटीफुल वाइफ थी. दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. और एक दिन एक गार्डन में घूमते हुए यूरिडाइस, जो उसकी वाइफ था, उसका पैर एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ गया. और उस सांप ने क्या किया, उनकी तो आदत होती है, वो क्या करते हैं, डंक मार देते हैं. तो उन्होंने भी उसको क्या कर दिया था, उसको डंक मार दिया था, जिससे उसकी वाइफ जो है वो मर गई थी. ऑर्फियस वॉज फुल ऑफ ग्रीव एट हर डेथ. He could not sing, he could not play his lyre, he could not live without Eurydice. At last he made up his mind that he would follow his wife to Hades, the land of the dead. वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि उसके जुदाई का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए हेड्स जाऊं, जो कि लैंड ऑफ डेड माना जाता है. मतलब वो जगह जहाँ पे जो डेड पीपल हैं वो जाते हैं. So Orpheus set out on a journey to Hades. He found a cave on the side of a volcano which leads to Hades, passing through many dark passages. Orpheus reached Styx, the river of death. At the river there was a boatman. When Orpheus requested him to row him across the river in his boat, the boatman replied, "My boat is meant only for the dead. How can I carry you?" Not discouraged at all, Orpheus began to play his lyre. The boatman was so charmed that he carried him across the Styx. तो वो उसको हेड्स पे जाना था. हेड्स पे जाना था तो वहाँ पे एक रिवर थी जो उसको क्रॉस करनी थी. वहाँ पे जो बोटमैन बैठा हुआ था वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मैं सिर्फ डेड पीपल, जो मरे हुए लोग होते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को ये नदी पार कराता हूँ. अब वो काफ़ी दुखी हुआ, लेकिन उसने अपना जो लायर है वो निकाला और बजाना शुरू किया. वो बोटमैन इतना मेस्पराइज हुआ कि वो उसको कैरी करके अपनी बोट में सिंटेक्स तक ले गया. Orpheus continued his journey until he reached the gates of Hades. अब वो कहाँ पहुँच गया, जो हेड्स का दरवाज़ा है वहाँ पे वो पहुँच गया. There Cerberus, the dog who guards the gates, tried to pounce on him, but Orpheus immediately started playing on his lyre, and Cerberus was so enchanted that he listened motionlessly and Orpheus easily went across the gates. अब जैसे हम लोग अपने गेट पे क्या रखते हैं, डॉग्स को रखते हैं, वैसे ही हेड्स के गेट पे भी उसको क्या मिला था, एक डॉग मिला था. डॉग उस पर बार्क करने लगा, वो उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था. तो उसने फिर क्या किया, अपना म्यूज़िक बजाया. डॉग जो है वो मोशनलेस हो गया और उसको उसने अंदर जाने दिया. Now Orpheus was in the palace of Pluto, the king of the dead. Pluto was sitting on his throne with his queen, Proserpina. Orpheus bowed before them and played on his lyre. The music so moved the king of the dead that tears rolled down his hard cheeks, and it brought Proserpina the memories of the flowered field of her maiden home, and her eyes too became moist.
अब वो कहाँ पहुँच गया था? प्लूटो जो किंग था उसके पैलेस में पहुँच गया था, ठीक है। वो जब उनके सामने पहुँचा, उन्होंने उसको क्या किया, जो भी अभिनंदन उसने किया, और फिर जा कर के अपना क्या किया, अपना लायर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था वो बजाना उसने शुरू किया। इतना उसने बजाया कि वो लोग क्या हो गए थे, खुशी के आंसू उनके चेहरे पे छलक गए थे। देन ऑर्फिस प्लीडेड विद द किंग, प्लीज़ लेट माई वाइफ गो बैक विद मी, आई कांट लिव विदाउट हर। अब उसने अपनी अर्जी वहाँ पे लगाई, उसने प्रार्थना की कि मुझे मेरी वाइफ वापस दे दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। Even Pluto could not resist such pleading. He said to Orpheus, all right, you may take Eurydice back to the daylight, but there is one condition. Eurydice will follow you, but you must not look back to see if she is there until you are out of Hades. If you break this command, Eurydice will return to me. अब जब वो ये प्लीड करता है, प्रार्थना करता है, तो वो किंग जो है वो उसकी प्रार्थना मान लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुमको तुम्हारी वाइफ वापस कर देता हूँ, लेकिन तुम पीछे मुड़कर अपनी वाइफ को नहीं देखोगे। मतलब तुम आगे आगे चलोगे, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, और अगर तुमने गलती से पीछे मुड़ के देख लिया तो तुम्हारी वाइफ को मैं वापस अपने पास बुला लूँगा, फिर वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। Orpheus promised that he would obey. He led Eurydice on their happy journey back to the land of the living. The way from Hades to the upper world was long and tiresome. The hazardous journey was almost ended when they reached a long dark passage. Orpheus led the way, stumbling over crags as he moved ahead, but there was a sense of fulfillment in his heart. A few more steps and they would be out of Pluto's kingdom. अब वो बहुत खुश था कि चलो मेरे पीछे मेरी वाइफ मुझे फॉलो करती हुई आ रही है। तो वो पूरा रास्ता जो है खुश था, उसको क्रॉस करते हुए जा रहा था। सडनली जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसके अंदर एक खुशी थी कि अब मैं इस गेट के पार जब करूंगा तो मेरी वाइफ मेरे साथ होगी। But at that final moment, Orpheus was overcome with anxiety for Eurydice. Was she really coming behind him? She might have fallen, or some terrible creature of Hades might have seized her. So he looked back over his shoulder to assure himself, and she was with him. Their quiet safe followed Eurydice, but that was only for a moment. The vow had been violated, and Eurydice had to return to Hades. Orpheus could see sadness on her face. A little whisper seemed to say farewell as she disappeared from his view. अब उसको उसके मन में चिंता होने लगी कि मेरी बीवी सच में मेरे पीछे आ रही है, कहीं वो रास्ते में किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गई, कहीं उसको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। अब उसने क्या किया, जस्ट अपना सर बस अपने कंधे तक ही घुमाया था, और उसे यकीन हो गया था कि मेरी वाइफ मेरे पीछे है, लेकिन उसकी ये गलती उसकी वाइफ को वापस ले गई। उसकी वाइफ ने उसको फेयरवेल बोला और वो वापस कहाँ चली गई, हेड्स में चली गई। Orpheus too tired to turn back into Hades, but he found that his way was blocked by a solid rock. अब वो भी पीछे मुड़कर अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था, उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका जो रास्ता है वो स्टोन से कवर कर दिया गया था। Never again could he go back to the underworld and meet his wife. He returned to the earth, but now life meant nothing to him. He lived among birds and trees and played his sad music, waiting only to die. अब उसने कोशिश की पीछे जाने की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जा पाता था वो, ठीक है। और वो वापस अपने घर की तरफ आ गया और अपनी पूरी लाइफ उसने सैड म्यूज़िक बजाने में स्पेंड कर दी। Word bucket, lyre, a musical instrument with strings, enchanted, charmed strings, musical notes, journey, wandering, discouraged, having lost confidence or enthusiasm, cracks, sharp edges of rocks. तो बच्चों आपने देखा कि हम फिल्मों में देखते हैं, हैप्पी एंडिंग्स देखते हैं, एंड में हीरो को हीरोइन मिल जाती है, लेकिन ये कैसी एंडिंग थी, ये सैड एंडिंग थी, जिसमें हीरो जो था ऑर्फियस उसको उसकी वाइफ नहीं मिल पाई। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, थिंक एंड आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्फियस वॉज टॉल्ड टू प्ले द लायर बाय, किसने उसको सिखाया था, उसके ही फादर अपोलो ने, ठीक है। Now next, fill in the blanks. Orpheus enchanted with his dash, not only humans but also dash. तो वो enchant क्या करता था, अपने लायर पे, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो जिससे मेस्मराइज जो थे कौन हो गए थे, नॉट ओनली ह्यूमंस बल्कि वाइल्ड बीस्ट भी हो गए थे। नाउ राइट ग्रीक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नेम दिए गए हैं, उनके आपको ग्रीक नेम लिखने हैं। जैसे द लैंड ऑफ डेड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड्स बोलते हैं ग्रीक में।
Answer the following questions. Who was Orpheus? How effective was his music? Orpheus was the son of Apollo, the sun god, and his music was so effective that it is mesmerizing, and everybody was mesmerized by his music. Value insights. Orpheus had the power of music to charm others, but there are several qualities which can help us create a favorable impression on other. Discuss with your partner and make a list of such qualities. अब जैसी क्वालिटी ऑर्फिस में थी, वो म्यूज़िक बजाता था तो लोग उसके फ़ैन हो जाते थे। ऐसी ही क्वालिटीज़ आपको खुद में ढूंढनी है या अपने फ्रेंड्स में ढूंढनी है और क्लास में डिस्कस करनी है। Now grammar stroke, reading and writing skills, so that the boatman was so charmed that he carried him across the Styx. Cerberus was so enchanted that he listened motionlessly. We can sometimes join two sentences using so that. तो कभी कभी हम दो sentences को जोड़ने के लिए so और that का इस्तेमाल करते हैं। I was very tired. I could not keep awake. We can join these as two sentences. कैसे? I was so tired that I could not keep awake. Now match these sentences and join them using so that. She felt very happy. Tears rolled down his eyes. ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको मैच करोगे और इनके बीच में आप so and that ऐड करोगे। Read the following passage given below and find out the example of each. Orpheus promised that he would obey. He led Eurydice on their happy journey back to the land of the living. The way from Hades to the upper world was long and tiresome. The hazardous journey was almost ended when they reached a long dark passage. Orpheus led the way, stumbling over crags as he moved ahead, but there was a sense of fulfillment in his heart. A few more steps and they would be out of Pluto's kingdom. अब आपको क्या करना है? पैसेज आपने पढ़ लिया, आपको इनमें नाउन ढूंढने, प्रोनाउन ढूंढने, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। नाउन क्या हुआ? नाउन नेमिंग वर्ड हो गए, तो आप यहाँ पे ऑर्फिस लिख सकते हैं, यूरिडाइज लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से प्रोनाउन ही, शी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स ढूंढ के लिखेंगे। वर्ड पावर, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रेजेस। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया अंडरलाइन करके, ठीक है। इसका आपको करेक्ट जो वर्ड का मीनिंग है इन तीनों में से वो आपको टिक करना है। लाइक इवन ट्रीज एंड रॉक्स वर कैप्टिवेटेड बाय द म्यूजिक प्लेड बाय ऑर्फेस। तो यहाँ पे अंडरलाइन क्या है? कैप्टिवेटेड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चार्म्ड, ठीक है। चार्म्ड पे आप टिक करेंगे। At last he made up his mind to follow his wife. तो made up his mind का मतलब क्या होगा? Decided, क्योंकि वो उसने क्या कर लिया? अपने माइंड में उसने मेड अप कर लिया, डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम करूँगा। Now punctuate this passage using capital letters where necessary. अब punctuate का मतलब आपको पता है, जहाँ जहाँ पे आपको लगे फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, या हमें अपना जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है अपने पैसेज का, वो हमेशा कैपिटल रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है या दो लाइन दी गई है, इनमें आपको पंक्चुएट करना है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कहीं कॉमा लगाने की ज़रूरत है, फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, तो वो इसको लगा करके आप कंप्लीट करेंगे। नाउ क्रिएटिव जंक्शन। देयर इज़ अ सिमिलर स्टोरी इन हिंदू माइथोलॉजी वेयर सावित्री गोज टू द लैंड ऑफ द डेड एंड ब्रिंग बैक हर husband. Discuss in your group the similarities and difference in the two stories. तो जैसे स्टोरी आपने पढ़ी यूरिडाइज एंड ऑर्फिस के, ऐसे ही सेम स्टोरी जो है हिंदू माइथोलॉजी में भी है। सावित्री जो अपने हस्बैंड के प्राण जो है वो किससे लाई थी? यमराज से वापस लेकर के आई थी, मांग के आई थी। तो ये स्टोरी में और इस स्टोरी में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपको बताने हैं दोनों को पढ़ के। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.